Hello guys, I'm the most underrated YouTuber of Pakistan. If it was all about making elite content. वो सब तो ठीक है, ये मेरी पैंट क्यों गीली हो रही है? आज मैं आपको सिखाऊंगा कोकेन करना. Because that's how you can be a gentleman. Because real gentleman gets high on himself and ignores the negativity of the society. नहीं यार, क्या बात कर रहा है? लिबरल्स की मार्च हो रही है. एक काम कर, इग्नोर कर और हेडलाइन चला दे कि रोड पर कचरा फेंकना मना है. ठीक है? See, that's how you can ignore the negativity of the society. The main thing you should do to be a gentleman is never watch Rohit Shetty's films. Because first, they have 0% storyline. Second, bombing car is not a new thing to me. I mean, I was born in Karachi, 2001, and I was 10 years old when I saw all of that. Out of context बात करता हूँ. इज्जत सिर्फ उर्दू ज़बान का लफ्ज़ ही नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो टिकटॉकर्स की कोई भी नहीं करता. जेंटलमैन बनना है तो एक चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा. कोई भी रैपर मरे तो उसका स्टेटस डालो और ये लिखना मत भूलना कि गॉन टू सून किंग. भले तुम उसको जानते हो या नहीं जानते हो, ये करना पड़ेगा क्योंकि माशरे में ऊंचे तबके के लोग ये सब करते हैं और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो लोग तुम्हें नीच तबके का समझेंगे. एक और ज़रूरी बात जेंटलमैन बनने के लिए, अगर किसी महफिल में कोई LGBT सपोर्टर आपसे कंफर्ट जोन का इजहार करे तो उसे फौरन डस्टबिन पास कीजिए क्योंकि कंफर्ट जोन बहुत ज़रूरी है. गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल. अगर आप किसी भी LGBT सपोर्टर को अपना ओपिनियन देते हुए देखें तो उसे सबसे करीबी कचरा फेंकने वाली जगह का रास्ता समझाएं क्योंकि उसका ओपिनियन सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है. दोबारा से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों की बात करते हैं. अनफनी सिर्फ अंग्रेजी ज़ुबान का लफ्ज़ ही नहीं बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो ज़ैद अली टी की स्किट्स होती है. हाँ, मैं हूँ जेंटलमैन, लेकिन मुझसे अब किसी का पात बर्दाश्त नहीं होता बिकॉज आई एम ऑलरेडी डिस्कस्टेड बाय द स्मेल ऑफ करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान. बदबू कहाँ से आ रही है? Anyways, today we will be seeing that how you can be a gentleman in different phases of life. The very first step is that tell them they can't be funny. The only funny thing that exists is their materialistic crisis. I mean, who the fuck cries for pink lip shade? Second step, which is very honorable, that kitchen should be their pride and washing dishes is the honor of women. Third step is kind of funny. उनको इस बात का यकीन दिलाओ कि केचप के साथ ऑमलेट खाने से वो दूसरों से अलग नहीं दिखेंगी. Fourth step, tell them that stand-up comedy is much more than boobs, ass and pussy periods jokes. I mean, see your matric mark sheet. That is the reason you are doing stand-up comedy. Tell them they can't support any crisis by dancing in their reels. It's much bigger than that. नाच के आप कैसे किसी की मदद कर सकते हो? Sixth and very important step, be nice towards women and show some respect. Seventh step, there are 7 billion people in this world. They shouldn't be thinking that their opinions matters the most, which they are giving in the free time of their kitchen cleanup. I think you should better clean that kitchen because that's what matters the most. Eighth step, if you dislike this video, you are automatically weak because you are getting offended by jokes. These are jokes, not your existential crisis. Ninth step, that is very clear. Tell them that the makeup is the most trash thing someone can ever use and who gave you the audacity to post about what a real man is while using all these fake cosmetics. I mean, it's like Sham Idris is chanting for good content. 10th and last step, if you are getting offended by these jokes, that's so insecure of you. I mean, real woman is not insecure of jokes. The very first step is that watch all of my videos and you'll automatically become a gentleman. ये फिर से पानी क्यों भरी है मेरी? Second step is that tell Sham Idris to stop doing all these dramas and controversies. Oh man, please, मैं already बहनचोद नाम का ड्रामा देख रहा हूँ हम के ऊपर. Tell Javir Shavri that we don't want to see how your friends shit, man. Like we are already seeing their channel hit 1 million subscribers. Fourth step, stop spamming in YouTube's comment section. I mean, who the fuck begs for likes in comment section, यार? रोड पे खड़े होके मांगो तो पैसे भी कमा लोगे, YouTube पे मांग के क्या कर रहे हो? पांचवा स्टेप और बहुत ही जरूरी, जब भी आप शामिर अब्बास शाह की वीडियो देखें तो उसे फौरन रिपोर्ट करें बिकॉज मिसलीडिंग कंटेंट शुड ऑलवेज बी रिपोर्टेड. जितना टाइम पाकिस्तान से बरमूदा जाने में लगता है उतना ही टाइम शाविर की ऑडियंस को मेरे जोक समझने में लगता है, मतलब कि कभी नहीं. एक रियर फैक्ट बताता हूँ,
अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे ना तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों का फ्यूचर नजर आएगा, डार्क, ब्लैक। अरे मैं तो YouTube पे जेंटलमैन बनने की तरकीब बता रहा था, ये कहाँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकल गया निदा यासिर के शो की तरह। चलें, जब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों की बात हो ही रही है तो एक सेगमेंट लगा लिया जाए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों का। सलीका उर्दू ज़बान का लफ्ज़ ही नहीं बल्कि एक ऐसी चीज़ भी है जो आजकल माशरे के लोगों को नहीं। इंतज़ार सिर्फ उर्दू ज़बान का लफ्ज़ ही नहीं बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो आजकल लोग तब्दीली का कर रहे हैं। जनाब, खून सिर्फ चोट लगने से नहीं आता है। आप कभी नेहा कक्कड़ के गाने सुनिए, आएगा, बल्कि ऐसी जगह से आएगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। उल्टी सिर्फ नशे करने के बाद नहीं आती है। आमिर लियाकत को देखा है आपने कभी? खारिश सिर्फ टट्टों में नहीं होती दोस्तों, यासिर हुसैन में भी बहुत होती है। हर वक्त चबड़ चबड़ करता रहता है यार। चुतियापे की बातों की अगर कदर होती ना तो आज लिबरल्स की बड़ी इज्जत होती। ओवररेटेड चीजों में टट्टी आज भी दूसरे नंबर पर है, नंबर 1 पर ज़ैद अली टी ही है। अगर गधों की इज्जत की जाती ना जनाब तो आज शामिर अब्बास शाह गधों के कबीले के सरदार होते। Aside jokes and everything, आज आपको हमने जो भी बातें बताई वो कहीं ना कहीं एक असली जेंटलमैन तो वो है दोस्तों जो खुलकर नाचे। Yo, hello. तुझे हर अदा पे अलफता ले जाऊं, मुझे अलविदा न कहीं। तुझे सबनबाद में घर दिलाऊं, तुझे रब नवाज ब्लाड दिलाऊं। किस किस अदा पे मैं फिदा नहीं, तेरी किस्त अदा कराऊं। Don't kiss the other guy, मेरी बेइज्जती ना कराएं, मेरी कश्ती ना डुबाएं, मेरी गश्ती ना भगाएं। आपकी बच्ची मैं भगाऊं, आपकी सब्जी मैं चुराऊं। सुबह अंडे वो बनाए, उन्हें बिस्तर में मैं खाऊं और उसको भी खिलाऊं। अब मैं आगे क्या बताऊं? Tell Javir Shavri that your Third step, tell Shavir Jafri that we don't want to see how your friends shit man, like हमें जाविर जाफरी बोल यार, टाइम लग रहा है। ये लव का लफ्ज़ ही नहीं सही है, ये लव का लफ्ज़ ही नहीं सही है। मुख्तलिफ का लफ्ज़ लुत्फ़अंदोज़ का लफ्ज़, ये लव का लफ्ज़ किस अदा पे मैं फिदा नहीं, किस अदा पे मैं मुझे किस अदा पे मैं फिदा नहीं। मुझे अलविदा न कहीं, मुझे अलविदा, मुझे अलविदा न कहीं, मुझे अलविदा न कहीं।